viewers, I am Pooja Chawla. Welcome to my YouTube channel Exploring Maths with Pooja Chawla. Today we will discuss some case study questions. As you all know, case study questions has been introduced in new pattern of CBSE. तो आज हम करेंगे case study question of chapter 9 some applications of trigonometry. Before starting the video, let me tell you, in this video we are going to discuss question from basic math to standard maths. तो यानी आपके पास चाहे basic maths है चाहे standard maths है, this video is very important for you. So let's begin. First of all, look at the first question. इस क्वेश्चन में एक एरोप्लेन की आपको स्टोरी दे रखी है. I will tell you the main things given in the question. In this question, this aeroplane, ये एरोप्लेन 1500 मीटर्स की हाइट पर है and there is a point C on the ground and angle of elevation is 60 degree. 60 degree आपको angle of elevation given है. Let's see the first part. If the point C moves towards the point B, then angle of elevation is increasing, decrease, remain same or none of these. So आपसे ये पूछा है अगर ये पॉइंट C B के क्लोज हो जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज या सेम रहेगा. सो यू नो जब ये हॉरिजेंटल लाइन के पास होगा पॉइंट, सो एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज. सो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट. बी पार्ट, find the distance of point C to the object. Here is the point C and this is the object. तो C से A तक यानी हाइपोटेन्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. सो लेट्स सी हियर, दिस इज द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन. आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज. हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूला में आते हैं, साइन के फॉर्मूला में. सो साइन 60 इज P अपॉन H. परपेंडिकुलर इज 1500, हाइपोटेन्यूज इज AC. हमें AC फाइंड करना है. साइन 60 इज √3/2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट √3 AC is equal to 1500 into 2. Here √3 is multiplied, right side पे divide कर दीजिए and don't forget to rationalize √3. So √3 से multiply करेंगे और divide भी करेंगे. After cancelling you will get 1000 √3. So this distance CA is 1000 √3. And one more thing students, आपको पता है केस स्टडी क्वेश्चन में एक पार्ट सिर्फ एक ही नंबर का है, 1 मार्क. So don't waste your time to write statement lines. Means आपको लिखने की जरूरत नहीं है. A point पे हेलीकॉप्टर है, C is the point on ground, this is the angle of elevation. Just write directly and solve this. Now let's see third part, C part. What is the value of distance BC? This is B and this is C. Means you have to find the base. Now here you have to find base and perpendicular is given to you. हमें पता है perpendicular और base कौन से फॉर्मूला में आते हैं. Yes, tan के फॉर्मूला में, tangent. So we will apply tangent. Tan 60 is perpendicular upon base. Perpendicular is 1500 and base is, here you can see base is BC. Tan 60 is √3. Cross multiply this, solve this. You can easily solve it. It's 500 √3 meters. So first option is correct. Now let's see D part. If angle of elevation changes from 60 degrees to 45 degrees, what will be the new distance BC? अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 की जगह क्या हो जाए 45, तब आपको बताना है BC क्या आएगी. You have to find it. So इस ट्राइंगल में 60 की जगह अगर हम क्या लिख दें 45 डिग्रीज. परपेंडिकुलर सेम है 1500. You have to find the base. So we will use the formula of tangent. Tan 45 is P upon B यानी perpendicular upon base. Perpendicular is 1500 and base is BC. Cross multiply this and you will get BC is equal to 1500. Now here we have a trick, a shortcut method to save your time in exam. जब भी आपका एंगल 45 डिग्री है
ठीक है, whenever angle is 45 degrees, perpendicular and base are equal. अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पता है, आप देखते ही बिना सॉल्व किए विद इन अ सेकेंड आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो. हियर एंगल इज 45 डिग्री, परपेंडिकुलर एंड बेस मस्ट बी इक्वल. तो बेस कितना हो जाएगा? 1500. Isn't it interesting? Now let's look at the next part. E part, the area of triangle ABC. This is the triangle ABC. You have to find its area. Now we know area of triangle is half base into height. This BC is the base and height is AB. तो बस यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 500√3 मीटर, जो हमने पहले निकाली थी वो होगा बेस, क्योंकि मेन जो आपकी ट्राइंगल है उसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड पार्ट में बेस फाइंड किया था, सेकंड और थर्ड पार्ट में. सो बेस इज 500√3 एंड परपेंडिकुलर इज 1500. कैंसिल करो इसको सॉल्व करके, आपका आंसर आ जाएगा 3,75,000√3 मीटर्स. नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली. यहाँ पे 3 zeros है ना? यस. और यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहाँ, जैसे ये थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, इसमें यहाँ 2 zeros हैं. तो आपको बिल्कुल ध्यान से सिर्फ करेक्ट आंसर को मार्क करना है. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ पार्ट, 3,75,000√3 मीटर स्क्वायर. आपको अब तक ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लगा? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखो, रीड करते हैं. सपोज देयर आर 2 windows in a house. A window of the house is at height of 1.5 meter above the ground and the other window is 3 meter vertically above the lower window. तो इसमें क्या है? घर है. इसमें एक विंडो तो ग्राउंड लेवल से कितना अबव है? 1.5 मीटर. एंड अदर विंडो, जो सेकेंड विंडो है, वो कितना है? 3 मीटर अबव द लोअर विंडो. वो पहली वाली विंडो से कितना ऊपर है? 3 मीटर्स. नाउ अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन द 2 windows. तो इन 2 windows में 2 persons बैठे हैं, अनिल एंड संजीव. एट एन इंस्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर 45 एंड 30 डिग्री. तो इन विंडो से एक बलून को देख रहे हैं दोनों, अनिल भी और संजीव भी, और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. मीन्स अनिल मेक्स एंगल 45 एंड संजीव मेक्स एंगल 30. नाउ अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन द 2 windows. ये हम पढ़ चुके हैं सब. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फिगर. तो इस क्वेश्चन की फिगर के लिए सबसे पहले हम 2 windows बनाएंगे. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट विंडो जो कि है 1.5 मीटर हाइट पे, एंड सेकेंड विंडो है बी पॉइंट पे, जो कि फर्स्ट विंडो से कितना अबव है? 3 मीटर. सो दिस बी सी इज 3 मीटर एंड सी डी इज 1.5 मीटर. नाउ बोथ ऑफ दीज, यहाँ पे संजीव है और अनिल है, दोनों देख रहे हैं बलून को. बलून है ए पोजीशन पे, एंगल है 30 एंड 45 डिग्री. नाउ यू हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली. ये वर्टिकल लाइन में जो है बलून है. ठीक है, बलून की हाइट, जो पर्सन ऊपर से देख रहा है ऊपर वाली विंडो से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? लेस. और जो नीचे से देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? मोर. बिकॉज ये जो बी पॉइंट है ये बलून के क्लोज है. ठीक है, ऊपर क्लोज है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल लेस हो जाएगा. और ये जो नीचे से देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा, मोर. नाउ let's see the first part. A part. Find the height of the balloon from the ground. You have to find the height of balloon. A point पे balloon है, आपको इसकी height find करनी है ground से. This is E point on the ground. तो देखो 1.5 plus 3 plus H, आपको H find करना है. H find करके इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ बलून. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ ट्राइंगल विथ 30 डिग्री एंगल. जिसमें 30 डिग्री एंगल है, पहले वो देखते हैं. tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? h, और बेस हमने क्या लेट कर लिया? x. tan 30 इज 1/√3.
1/√3 h upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x is equal to h√3. Now look at the second triangle having angle 45 degree. जिसका एंगल क्या है 45, that is A, C and F. इसमें भी हम सेम अप्लाई करेंगे टेंजेंट का फॉर्मूला, tan theta p by b. Here in this triangle perpendicular is h plus 3 and base is x. tan 45 आपको पता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x is equal to 3 plus h. Also we know अगर एंगल 45 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस आर इक्वल. तो परपेंडिकुलर क्या है h plus 3 और बेस क्या है x, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल. 1 मार्कर्स में तो आपको शॉर्टकट यूज करने होंगे ताकि पेपर क्योंकि लेंदी होगा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है. तो अब यहाँ देखो, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आई h√3, पुट हेयर x इज इक्वल टू h√3. तो यहाँ पे h प्लस है, लेफ्ट साइड ले जाओ, h इज √3 - 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ √3 - 1 मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि ऑप्शन में जो आपको आंसर दे रखे हैं सारे पॉइंट में दे रखे हैं डेसिमल की फॉर्म में. तो आपको √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी 1.732. 1.732 में से 1 माइनस करोगे 0.732 और इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 4.098. नाउ इज दिस द हाइट ऑफ बलून? नहीं, नो, ये तो सिर्फ h की वैल्यू आई है. h प्लस 3 प्लस 1.5, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तब क्या आएगा हाइट ऑफ बलून. यस, जब आप उनको ऐड करोगे ना हाइट 1.3 और 3 को, तो आपका आंसर आएगा 8.6, राउंड ऑफ करके बनेगा 8.6. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया करेक्ट. नाउ लुक एट द बी पार्ट. अमंग अनिल एंड संजीव हु इज मोर क्लोजर टू द बलून? तो यहाँ पर अनिल और संजीव कौन क्लोजर है बलून के? जो ऊपर है हाइट पर वो क्लोजर होगा. तो ये क्या हो गया, संजीव इज क्लोजर टू द बलून. Now C part, if balloon is moving towards the building, then will the both of angle of elevations remain same? अगर ये balloon, this balloon is moving toward the building, इसके पास आ जाएगा तो क्या angle of elevation same रहेगा? No, angle of elevation will change. So you will write no. ठीक है, in fact angle of elevation क्या होगा? change होगा. Now let's see D part. In D part, if height of any tower, listen very carefully students, if height of any tower is doubled and the distance between observer and foot of the tower is also doubled, then angle of elevation remains same, become double, become triple or none of these. इस क्वेश्चन में ये कहा है अगर ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ बिल्डिंग डबल कर दें, मीन्स 10 से डबल कर दिया 20, और ये जो है ग्राउंड वाला लेंथ BC इसे भी डबल कर दें, 20 का डबल कर दिया 40. मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए नंबर लिए हैं 20 एंड 10, यू कैन टेक एनी नंबर. तो हमें ये बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ट्राइंगल ABC. हियर एंगल इज θ1. tan θ1 perpendicular upon base 10 upon 20. Cancel this 1 upon 2. ठीक है, अब ये सेम वर्क करते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल में. इसमें हमने क्या कर दिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डबल्ड एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो डबल्ड. ये वाला डिस्टेंस भी डबल कर दिया और ये वाला डिस्टेंस भी डबल कर दिया. लेट्स सी एंगल पे क्या चेंज आता है. tan θ/2 perpendicular upon base. Here perpendicular is 20. Here base is 40. कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1/2. नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल 1/2 एंड 1/2 और लेफ्ट साइड भी उनकी क्या हो जाएंगी इक्वल. tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2. वहां से क्या आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2. दैट मीन्स एंगल जो है वो सेम रहेगा. क्लियर? वी विल रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट. व्हाट इज द रिजल्ट? अगर परपेंडिकुलर हाइट डबल हो जाए और बेस भी डबल हो जाए, एंगल विल रिमेन सेम. डबल की जगह क्वेश्चन में आ जाए ट्रिपल, तब भी एंगल क्या रहेगा सेम.
Now let's see E part. Suppose a tower and a pole is standing on the ground. एक पोल है और एक टावर है जो ग्राउंड पर है. And the angle of elevation from the bottom of the pole, ये पोल इसके बॉटम से और इसके टॉप तक एंगल है θ1. And angle of elevation from top of the pole to the top of the tower, पोल के टॉप से टावर के टॉप तक एंगल इज θ2. यू हैव टू टेल θ1 ग्रेटर θ2 होगा या दोनों इक्वल होंगे और θ1 इज लेस देन θ2 और नन ऑफ दीज. आपको ये बताना है कौन सा एंगल ग्रेटर होगा. नाउ लुक हियर, ये θ2 पॉइंट इस टॉप के क्लोजर है ना, ठीक है, तो ये एंगल स्मॉल होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, बिगर. इसे समझने के लिए एक छोटा सा सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है. सपोज यू आर ऑन द टेरेस ऑफ योर होम. आप अपने घर के टेरेस पे हो और वहां से एरोप्लेन देख रहे हो ऊपर स्काई में, ठीक है. तो आप उस एरोप्लेन को देखने के लिए आपका हेड जो है, आपका हेड ज़्यादा ऊंचा नहीं करोगे, वहां से इजीली विजिबल होगा, ठीक है, यानी टॉप से इजीली दिख गया. एंगल स्मॉल है और वही एरोप्लेन कोई नीचे से देख रहा है तो उसे हेड ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, यानी एंगल ज़्यादा बनेगा, ठीक है. तो θ1 जो होगा वो ग्रेटर होगा और θ2 लेस होगा. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. बोर तो नहीं हुए ना? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के. सो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ नेशनल कम्युनिकेशन एंड टेलीकास्टिंग टावर. एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन टावर है, ठीक है, टावर, और एक मैन उसके टॉप से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. ये आपको याद हो तो आपकी एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. ये एक पर्सन जो है हाईवे पे एक कार को नोट कर रहा है. एट द टॉप ऑफ द टावर, ओके, एट द टॉप ऑफ द टावर अ पर्सन ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो पहले एंगल है 30 डिग्रीज और बाद में एंगल है 60 डिग्रीज. आफ्टर 2 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्रीज. नाउ लेट्स सी ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड and angle of elevation of the same point on the ground is equal, double, triple or none of these. तो बेसिकली इस पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, ठीक है, और अब हम यहाँ बी पॉइंट से देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह हो गया. तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज आपको पता है ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. सो दीज एंगल्स आर इक्वल. ऊपर से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, सो दीज आर इक्वल. तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट. बी पार्ट, एन एंगल ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइड एंड द हॉरिजेंटल विद द हॉरिजेंटल. तो एंगल ऑफ, ये किसकी डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन. सी पार्ट, हाउ मच टाइम द कार विल टेक टू रीच द फुट ऑफ द टावर. इसमें भी हम एक शॉर्टकट ध्यान रखने वाले हैं. सो लेट्स सी. सो आप एक तो ये देखोगे ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है आपका एनसीईआरटी से. क्वेश्चन नंबर आई गेस 15 ऑफ एनसीईआरटी, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट सेम है. तो यहाँ पर ये आपको पता है ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन से. हमने बी से सी तक कार ने लिए 2 मिनट्स. आपको बताना है सी से डी तक कार कितना मिनट लेगी, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए. एंड दिस इज द हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन टावर. नाउ पहले हम 30 डिग्री की लेंगे. ट्राइंगल tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस क्या हो गया, y. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, h इज इक्वल टू y√3. नाउ वी विल टेक सेकेंड ट्राइंगल BAD जिसमें 30 डिग्री का एंगल आ रहा है. तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस क्या होगा, x प्लस वाई. यू विल नॉट राइट 2 प्लस वाई. 2 इज द टाइम, हम हमेशा लिखते हैं लेंथ या डिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, x, और यहाँ पे y, x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो.
यहाँ h की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, h की जगह हमने पुट कर दिया y√3. सॉल्व दिस, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2y. √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा ना, एंड 3y माइनस y 2y. तो यानी x इज इक्वल टू 2y. नाउ स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव, x इज 2y, यानी ये जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 2y. यहाँ पे डिस्टेंस हो गया हाफ, 2y का हाफ हो गया y. तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. 2 मिनट का हाफ हो जाएगा 1 मिनट, बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म. सो आप इसको डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद रखोगे. कैसे? जब भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जब भी आपको टाइम फाइंड करना है सी से डी का टाइम हो जाता है हाफ. ये 2 मिनट थे तो यहाँ हो जाएगा हाफ 1 मिनट. अगर आप इसको एज अ रिजल्ट याद रखो तो हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. हाफ ऑफ 2 इज 1, सो 1 मिनट इज द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस CD. यस, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा करेक्ट. नाउ लेट्स सी डी पार्ट. सपोज द डिस्टेंस between ball and a tree is 10√3 meters and one person is sitting at the top of the surface of a tree. Find the angle in which observer see the ball. देखो आपको इसके लिए फिगर भी गिवन है. एक ट्री पे एक पर्सन बैठा है, वो बॉल को देख रहा है. आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन. यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन. आपको ये परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, ये बेस गिवन है, ठीक है. आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों कौन से फॉर्मूलाज में आते हैं, टेंजेंट के फॉर्मूला में. तो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जब आप ये लिखोगे 10 से 10 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल. क्या बचेगा, 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3. 10 की टेबल में कब आता है, यस 30 डिग्रीज. सो 1 अपॉन √3, एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज. आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी कमांड है चैप्टर पे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप यहीं से देख सकते हो 10 से 10 कैंसिल, 1 अपॉन √3, और 10 की टेबल में 1 अपॉन √3 कब आता है, 30 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज. ऑल्सो एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ देखो परपेंडिकुलर है 10, बेस है 10√3. परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट का फॉर्मूला है, तो 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई √3. 10 से 10 कैंसिल, 1 अपॉन √3. 1 अपॉन √3 10 की टेबल में कब आता है, 30 डिग्री. सॉरी, इट इज 30 डिग्रीज. यहाँ 30 डिग्री आएगा. 10 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर. ई पार्ट. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन above the tower decreases, then length of shadow of a tower increase, decrease, remain same or none of these. ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको फिर से इमेजिन करना है थोड़ा सा, ठीक है. जब सन आपके बिल्कुल हेड पे होता है तब हमारी शेडो कम बनती है ना. जब सन हेड पे है, यानी एक तरह से मान लो 90 डिग्रीज पे भी है, तो शेडो क्या बनती है, बहुत छोटी सी बनती है. लेकिन जैसे जैसे सन सेट होता है तो शेडो कैसी होती है, इंक्रीज करती है. और जब सन सेट होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिक्रीज करने लग जाता है. एक तरह से आप कह सकते हो 90 से कैसे आ जाता है 0 डिग्री पे, ठीक है. तो जैसे जैसे सन सेट होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करेगा, तो लेंथ ऑफ शेडो क्या करती है, इंक्रीज. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. Yes students, if you like the video, please press like button and subscribe, and don't forget to share it with your friends. नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, keep studying and all the best for your board exams.